Dear students, today you have to study Maths Part 1, Chapter 3, Trigonometric Function. In trigonometric function, first you have to see principal solution of trigonometric equations. Okay, means in exercise 3.1, question number 1 and 2, it is given that find the principal solution of the given trigonometric equations. So, what is principal solution? First, you have to see this. After that, what is the range of principal solution and how to find the principal solution of given trigonometric equation. So now see principal solution. A solution of theta of a trigonometric equation is called a principal solution if 0 is less or equal theta is less than 2 pi. Means value of theta lies between 0 to 2 pi. Means equal to 0 but not equal to 2 pi. Equal to 0 is okay but less than 2 pi. And one more important point, 0 is the principal solution of equation sin theta equal to 0. But 2 pi is not a principal solution. So dear students, here you have to understand sin theta equal to 0 means sin 0 degree equal to 0. So sin 0 radian is also 0. So at 0 degree and for 360 degree means 2 pi, both are the same line, both are the same point. But 0 is the principal solution here. 0 is the principal solution of equation sin theta equal to 0 because 0 is less or equal to theta. But 2 pi is not a principal solution. Why? Because it is less than 2 pi, not equal to 2 pi. Here equal is not given. This is the reason 2 pi will not be accepted. And another important point, cos theta equal to minus 1 has only one principal solution. ये याद रखना है सबको कि cos theta equal to minus 1 has only one principal solution. Since theta equal to pi is the only principal solution of this equation because cos 180 degree, cos pi equal to minus 1. Okay. So these are the important points, rules you can say, and this one is important range, important formula for your solution which you have to write in every question. So 0 is less or equal theta is less than 2 pi. Now see question number 1. Question 1, find the principal solution of the following equations. Your first question is cos theta equal to half. Cos theta equal to half. तो सबसे पहले हमें देखना है कि cos how much degree equal to 1/2. सबसे पहला काम ये देखना है. Normally in from the trigonometric table which you have studied in 10th standard, 11th standard, also in 9th standard or in any standard, जिसको जहाँ से भी पढ़ाया गया हो ट्रिग्नोमेट्री 9th से 10th से या बिफोर 9th, तो उसमें देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब भी देखोगे कि cos थीटा इक्वल टू हाफ, तो cos हाउ मच डिग्री इक्वल टू हाफ. तो वी नो दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ. cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2. और 60 डिग्री को ही अगर हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो क्या मिलेगा वहां पर π/3. तो हमें यहाँ पर सोल्यूशन रेडियंस में देना है न कि डिग्रीज में. तो सिंस cos π/3 का मीनिंग क्या है 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 एंड दिस π/3. अब ये π/3 देखो इस रेंज में फिट बैठता है कि नहीं. तो cos π/3 तो ओनली π/3 यू हैव टू चेक एंड 0 इज लेस और इक्वल π/3 इज लेस देन 2 पाई. देखो 0 लेस देन π/3 एंड π/3 इज लेस देन 2 पाई. तो रेंज में π/3 फिट बैठ गया यहाँ पर. तो अगर ये π/3 0 और 2 पाई के बीच में आता है, बीच में लाई करता है, तो क्या लिखो यहाँ पर therefore π/3 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन. तो ही π/3 इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा. किसका? गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू हाफ. फिर से देख लो cos थीटा इक्वल टू हाफ गिवन. तो सबसे पहले हमें चेक करना कि cos हाउ मच डिग्री इक्वल टू
हाफ। तो वी नो दैट cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ एंड 60 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई अपॉन 3 इन रेडियन। ये लिख दिया cos पाई अपॉन 3। तो cos पाई अपॉन 3 टोटल वैल्यू हो गई cos पाई अपॉन 3 इक्वल टू हाफ। अब ये पाई अपॉन 3 को देखो तो यहाँ लिखोगे एंड जीरो लेस आर इक्वल पाई अपॉन 3 लेस देन 2 पाई। जब ये इसके अंदर आता है तो ही ये लिखना है, नहीं तो नहीं लिखोगे। तो देयरफॉर पाई अपॉन 3 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। एक हो गया। बट बाय अलाइड एंगल फार्मूला, अलाइड एंगल फार्मूला क्या कहता है कि cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा। देखो cos एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव जो 60 डिग्री है। फिर हम लोग चलते हैं बाय रूल ASTC रूल कि cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा। एक फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और दूसरा फोर्थ में। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट का भी वैल्यू यहाँ पर शो करेंगे कि cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा। ये भी फार्मूला है, कौन सा, अलाइड एंगल फार्मूला, कि फोर्थ में भी पॉजिटिव इसलिए हम 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं या उसी को 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अब हमारा थीटा यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखो cos पाई अपॉन 3, तो यहाँ लिखोगे थीटा इज पाई अपॉन 3। तो ये हो गया cos पाई अपॉन 3 इक्वल टू cos 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है, थीटा की जगह पाई अपॉन 3 लिख दिया, दोनों ही प्लेस पर थीटा पाई अपॉन 3 और यहाँ भी थीटा पाई अपॉन 3। अब ये रियल में इसको माइनस करो, कितना होगा, देखो 3 इंटू 2 पाई 6 पाई, 6 पाई माइनस 1 पाई 5 पाई, तो 5 पाई अपॉन 3। तो देयरफॉर cos पाई अपॉन 3 इक्वल टू cos 5 पाई अपॉन 3। अब ये 5 पाई अपॉन 3 क्या 2 पाई से लेस है, यस। तो एंड 0 इज लेस आर इक्वल 5 पाई अपॉन 3 इज लेस देन 2 पाई। यहाँ पर भी उसकी रेंज लिखोगे क्योंकि ये इसके डिफिनीशन में दिया है, तो रेंज शो करना बहुत ही जरूरी है, ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक वैल्यू हमें क्या मिली, पाई अपॉन 3। यहाँ से देखो पाई अपॉन 3 इसके रेंज में आती थी। दूसरी वैल्यू कौन सी है, 5 पाई अपॉन 3, जो कि यहाँ से मिला। तब जाकर के अपना फाइनल आंसर लिखोगे, देयरफॉर 5 पाई अपॉन 3 इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। So therefore pi upon 3 and 5 pi upon 3 are the principal solutions of trigonometric equation cos theta equal to 1/2। तो ये रहा अपना फुल प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए इन ईच एंड एवरी केस। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पूरा डिटेल्स में सॉल्व करना है फुल मार्क्स के लिए। और डियर स्टूडेंट्स, हमें एक आप लोगों से कमेंट ये भी चाहिए कि सोल्यूशन को और भी डिटेल्स में आप लोग चाहते हैं या सोल्यूशन इतना इनफ है, ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि सर दिस सोल्यूशन इज़ ओके। जो भी है सोल्यूशंस अपना कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। और दूसरी चीज़, जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को टच कीजिए और आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं, तो हमारे सभी न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी, इमीडिएट मिल जाएगी। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ फॉर द प्रिंसिपल सोल्यूशन। और आज मैं केवल आप लोगों को सिर्फ प्रिंसिपल सोल्यूशन ही सिखाऊंगा, क्योंकि जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर एक ही दिन में पढ़ते हो तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, जैसा कि मैंने देखा है स्टूडेंट को पढ़ाने के टाइम, क्लासेस में, प्राइवेट ट्यूशन्स में, सभी जगह। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ही दिन में अगर कई टॉपिक्स पढ़ा दो तो अगले दिन बच्चों को सब कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए अपने एक एक टॉपिक, एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करो, फिर अपना दूसरा सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो या मैथमेटिक्स का दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हो। लेकिन एक ही एक्सरसाइज की या एक ही सब्जेक्ट की एक ही प्रॉपर्टी पर बेस्ड कई रूल्स नहीं पढ़ने चाहिए एक दिन में, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए एक दिन में एक पहले प्रॉपर्टी क्लियर करो, फिर उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी जनरल सोल्यूशन अपने अगले वीडियो में देता हूँ। तो नाउ सी इट्स सेकंड पार्ट, sec थीटा इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इट इज गिवन। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, जैसा कि मैंने यहाँ दे दिया है sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो हम लोग यहाँ रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर आ गया cos थीटा और यहाँ पर रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि 1/sec थीटा इक्वल टू cos थीटा, राइट। अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ से देख लीजिए कि अगर हम cos थीटा यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, cos थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा। ठीक है, हमने राइट साइड को रेसिप्रोकल किया रूट 3 अपॉन 2 और इस साइड क्या होता था 1 अपॉन sec, और 1 अपॉन sec क्या होता है cos थीटा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन cot, sec एंड cosec में दिया है तो हम लोगों को उसे tan, cos एंड sin में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन
कॉट सेक कोसेक में दिया है, तो वी शुड कन्वर्ट इट इन tan, cos एंड sin रिस्पेक्टिवली। नाउ सी, तो ये अपना क्वेश्चन अभी कॉस में हो गया, मीन्स अब सेक से कोई यहाँ पर सेक थीटा से कोई रिलेशन नहीं, तो cos थीटा इक्वल टू √3/2। नाउ cos हाउ मच डिग्री इक्वल टू √3/2? वी नो दैट cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड 30 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या है, π/6। तो सिंस cos π/6 इक्वल टू √3/2 एंड 0 इज लेस आर इक्वल π/6 इज लेस देन 2π, मीन्स ये π/6 ये हम चेक करते हैं फिर उसके बाद ये लिखते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं है, ये समझ लो। ये π/6 कितना है, 30 डिग्री, और ये कितना है 360 डिग्री, ये 2π, तो 30 डिग्री 360 से तो लेस है, इसके लिए लिखा जाता है एंड 0 इज लेस आर इक्वल π/6 इज लेस देन 2π। ये कन्फर्म है तो हम इसको लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अभी मान लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता 6π होता, मान लो किसी कारण से ऐसा, तो क्या हम इसको लिख पाते, नहीं लिख पाते। ओके, तो देयरफॉर π/6 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। एक प्रिंसिपल सोल्यूशन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन तो होगा ही होगा। Okay, now next formula. Now by allied angle formula, we know that cos theta equal to cos 2π minus theta. So therefore cos π/6 equal to cos 2π minus π/6। जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, थीटा को यहाँ क्या रखना है, π/6, थीटा इक्वल टू π/6, तो 6 इंटू 2π 12π माइनस पाई, तो cos 11π/6, ये cos 11π/6 भी 2π से लेस है, इसको कन्वर्ट करके देखोगे ये 330 डिग्री आता है और ये 360 है, ठीक है। तो एंड 0 इज लेस आर इक्वल 11π/6 इज लेस देन 2π, so therefore 11π/6 is also a solution of the given trigonometric equation. So therefore π/6 and 11π/6 are the principal solutions. ये एकदम कंफर्म कर लो, इस तरह से अपने वैल्यूज आते रहेंगे। थर्ड वन, कॉट थीटा इक्वल टू √3। अभी कॉट थीटा रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा, इधर का रेसिप्रोकल 1/√3, तो फार्मूला एज कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। तो tan थीटा इज 1/√3, अब यहाँ से ही मान के चलो कि यही क्वेश्चन गिवन है, राइट। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, so therefore tan π/6 is 1/√3 because tan 30 degree equal to 1/√3 from the basic trigonometric table, and 0 is less or equal π/6 is less than 2π because π/6 lies between 0 to 2π. So therefore π/6 is a principal solution. एक सोल्यूशन ये भी हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ पर। तो भाई अलाइड एंगल फार्मूला, अब ये देखना है कि tan एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। अब ये थर्ड में पॉजिटिव होता है, ASTC रूल के अकॉर्डिंग ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए इसको हमें क्या चाहिए, पाई प्लस थीटा, तो देयरफॉर tan थीटा, सिंस tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, यही वैल्यू जो यहाँ पर है, या जो बोल दो कि यहाँ पर है, तो थीटा की वैल्यू रखनी है π/6, तो देयरफॉर tan π/6 इक्वल टू tan पाई प्लस π/6, तो देयरफॉर tan π/6 इक्वल्स tan 7π/6, 6 1 जा 6π प्लस 1π 7π/6, ये हो गया tan π/6 इक्वल टू tan 7π/6, मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो कंटिन्यू यहाँ से लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू tan π/6 इक्वल टू tan 7π/6 and 0 is less or equal 7π/6 is less than 2π. Okay, so therefore 7π/6 is also a principal solution. Therefore π/6 and 7π/6 are the principal solutions. π/6 and 7π/6 ये दोनों ही प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। अब इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों को और स्लो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। वैसे मैं अपनी तरफ से इस एक्सप्लेनेशन को स्लो ही कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी वैल्यूज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिर्फ यहाँ वैल्यू का कन्फर्मेशन करना है कि एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा वो देखना है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव, ओके। थर्ड में tan एंड कॉट
और पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, इसमें कॉस एंड सेक और पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव, तो इसीलिए इसको ASTC रूल बनाया। तो यहाँ से अपना ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बाहर रख सकते हो और यहाँ से अपना कौन से पॉजिटिव हैं किस क्वाड्रेंट में वो भी देख सकते हो, क्योंकि सभी ट्रिक्स और शॉर्टकट्स सब ऑलरेडी पहले दिए जा चुके हैं। तो अब आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, कॉट थीटा इक्वल टू 0। तो अभी हम कॉट थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, tan थीटा, राइट। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, यस, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 0, 1/0, राइट। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये देखना है कि tan हाउ मच डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो वी नो दैट सिंस tan π/2 दैट इज 90 डिग्री, टेबल में देखोगे तो क्या लिखा है, tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ND लिखा है। ND का मतलब क्या है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो हमें यहाँ एक सिंबल लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटी। तो tan π/2 इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 0 इज लेस आर इक्वल π/2 इज लेस देन 2π, क्योंकि π/2 लेस देन 2π है। तो ये भी फिट बैठता है इसके रेंज में, देयरफॉर π/2 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो बाय अलाइड एंगल फार्मूला tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा। तो अब यहाँ थीटा क्या है, π/2, तो tan यहाँ थीटा tan π/2 इक्वल टू tan पाई प्लस π/2। तो देयरफॉर tan π/2 इक्वल टू tan 3π/2, 2 1 जा 2π प्लस पाई 3π/2 एंड 0 इज लेस आर इक्वल 3π/2 इज लेस देन 2π। So therefore 3π/2 is also principal solution. Therefore π/2 and 3π/2 are the principal solutions. π/2 and 3π/2 are the principal solutions. ये इसका आंसर हो गया। इसके जो आंसर हैं वो टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिए गए हैं, वो आप लोग ध्यान देना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 फॉर सम नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें इसके वैल्यूज क्या दी गई हैं, नेगेटिव। तो वैल्यूज चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि वैल्यू कितनी है, उसे हमें नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट करना तो आराम से आता है, क्योंकि सभी फार्मूले 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। योर फर्स्ट क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू -12 -1/2। तो सबसे पहले क्या देखना, माइनस को छोड़ दो, पहले ये देखो कि साइन हाउ मच डिग्री इक्वल टू 1/2, इतने को देखो। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये बहुत ही केयरफुल्ली सुनो, सिर्फ हाफ को देखना है। देखो तो साइन थीटा एज इट इज, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, माइनस साइन को एज इट इज यहाँ रखना है, पुट माइनस साइन एज इट इज। साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, सिर्फ हाफ को देखो। तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस साइन π/6 इन रेडियन। अब ये देखना है कि माइनस जो है साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो साइन जो है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब देखो अपना जो फार्मूला है साइन पाई प्लस थीटा, ये पाई क्या है 180 डिग्री, और प्लस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जंप कर जाओगे। तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट, ये फार्मूला है। तो उसी फार्मूले को मैंने क्या लिखा है, माइनस साइन थीटा। इसके लिए देखो माइनस पहले है कि माइनस साइन थीटा, अपना थीटा यहाँ क्या है π/6, पहले इसको देखो माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा हियर, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा। तो ये नेगेटिव हो गया अभी, तो यहाँ थीटा क्या रखना है अपना π/6। तो हम लोग जब इस साइड भी π/6 रखेंगे तो यही इसके इक्वल ये हो जाएगा, राइट, माइनस, देयरफॉर माइनस साइन π/6 इक्वल टू पाई प्लस π/6। फिर से देख लो, हमने सबसे पहले क्या किया, हाफ को चेक किया, हाउ मच डिग्री या हाउ मच रेडियन। तो वी नो दैट साइन π/6 इक्वल टू हाफ। तो हाफ की जगह पर हमने क्या लिखा, साइन π/6 माइनस साइन जो है माइनस माइनस एज इट इज यहाँ तक। बट वी नो दैट साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अगले स्टेप में हम लोग थीटा की वैल्यू वहाँ पर रख देंगे। तो देयरफॉर माइनस साइन π/6 इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। फिर से देख लो, अगर हम लोग यहाँ थीटा को π/6 रखते हैं तो माइनस साइन π/6 इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6 ये मिलेगा ना। तो ठीक यही स्टेप यहाँ पर है, ये दोनों देखो,
ठीक है, दिस इक्वल टू दिस मच। तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6। अब इनको रियल में ऐड करो, 6 1 जा 6, यहाँ से मल्टीप्लाई लिए, 6 पाई प्लस पाई हो गया कितना, 7 पाई अपॉन 6। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन 7 पाई अपॉन 6। और ये 7 पाई अपॉन 6 अपने रेंज में आता है कि नहीं वो भी चेक कर लो। ये कितना हो जाएगा टोटल, 210 डिग्री। तो एंड 0 इज लेस आर इक्वल 7 पाई अपॉन 6 इज लेस देन 2 पाई। ये अपने रेंज में भी फिट बैठता है, ठीक है। तो देयरफॉर 7 पाई अपॉन 6 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। एक आंसर यहाँ पर हो गया। एक थर्ड क्वाड्रेंट में, और दूसरा साइन का वैल्यू जो है निगेटिव वो फोर्थ में भी होता है। तो अब इसी को लेके चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। वी नो दैट माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा। हाँ, एक चीज़ ये है कि हमने यहाँ फार्मूले में भी थीटा यूज किया है और अपने क्वेश्चन में भी थीटा ही दिया है। तो अगर किसी को थीटा की जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल यूज करना है तो यू आर फ्री, यू कैन यूज। जैसे यहाँ पर माइनस साइन अल्फा इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक। ऊपर भी लिख सकते थे, या ए, अल्फ़ाबेट ए यूज कर सकते हो, माइनस साइन ए इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस ए, कैपिटल ए यूज कर दो एंगल, तो भी चलेगा। या थीटा लिखना है तो थीटा, इट इज़ अ फार्मूला। तो माइनस साइन थीटा अपना फर्स्ट वैल्यू, तो देयर फोर साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ था, तो माइनस साइन पाई बाई 6, राइट। वही इक्वेशन फिर से, जो इक्वेशन ऊपर है यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 इक्वल टू, अब उसके इक्वल टू साइन 2 पाई, देखो माइनस थीटा है तो थीटा की वैल्यू हमने क्या रखा, पाई बाई 6, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा यहाँ ऊपर लिखा गया ना, सिंस साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये भी निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखो 6 इंटू 2 पाई 12 पाई, 12 पाई माइनस 1 पाई दैट इज 11 पाई। तो देयर फोर साइन थीटा, दिस वन साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू साइन 11 पाई अपॉन 6 एंड 0 इज लेस आर इक्वल 11 पाई अपॉन 6 इज लेस देन 2 पाई। ये भी वैल्यू लाई करता है यहाँ पर। तो therefore 11 pi upon 6 is also a principal solution. So therefore 7 pi upon 6 and 11 pi upon 6 are the principal solutions. तो ये रहे अपने नेगेटिव आंसर्स के वैल्यूज, जो कि माइनस ऑफ है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, ठीक है। ये है 210 डिग्री एंड दिस वन इज 330 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, मींस उनके मेन वैल्यूज हैं वही इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। नाउ सी सेकंड, tan थीटा इक्वल टू -1। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4, जो कि 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, और 45 को रेडियन में क्या लिखते हो, पाई बाई 4। तो माइनस, देखो -1 था तो माइनस एज इट इज रखो, कोई टेंशन नहीं है इसका, माइनस को ऐसे ही रखना है, माइनस tan पाई बाई 4, क्योंकि यही है ना tan पाई बाई 4 1, tan 45 डिग्री। अब ये देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, कि एज tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, यही है। तो अब इससे कंपेयर करो, माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा, थीटा यहाँ है तो यहाँ क्या है पाई बाई 4, मीन्स हमें इस साइड भी पाई बाई 4 पुट करना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 4, और इसको सब्ट्रैक्ट करो, 4 1 जा 4 पाई माइनस 1 पाई, दिस इज 3 पाई अपॉन 4। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स tan 3 पाई अपॉन 4, क्योंकि ये माइनस कर लिए तो ये कितना हो गया 3 पाई अपॉन 4 एंड 0 इज लेस आर इक्वल 3 पाई अपॉन 4 इज लेस देन 2 पाई, लाई करता है। तो आगे क्या करोगे फिर इसको, तो देयरफॉर 3 पाई अपॉन 4 इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन तो ये मिल गया अपना 3 पाई अपॉन 4। अब ये देखते हैं कि tan, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, राइट। अब tan जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, यहाँ लिखना पड़ेगा, वी नो दैट tan 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, या माइनस tan थीटा इक्वल टू tan 2 पाई माइनस थीटा, ये लिख लो। अब इसके बाद यहाँ भी थीटा की वैल्यू चेक करो, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4, थीटा क्या है अपना ऊपर पाई बाई 4, तो माइनस tan पाई बाई 4 इक्वल्स tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4, थीटा पाई बाई 4 रखना है, ठीक है। ऊपर अपना सोल्यूशन जो भी मेन सोल्यूशन जो आया था 45 डिग्री के लिए, 1 के लिए, तो tan पाई बाई 4 ही तो था ना, यहाँ पर 1 और ये हो जाता है मिला करके -1, तो -1 इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4।
क्योंकि इस फार्मूले से ये क्या है, माइनस टेन थीटा। अब ये यहाँ पर हो गया 4 इंटू 2 पाई, 8 पाई माइनस पाई, दैट इज 7 पाई। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan 7 पाई अपॉन 4 एंड 0 इज लेस आर इक्वल 7 पाई अपॉन 4 इज लेस देन 2 पाई, ये भी इसके रेंज में आता है। तो देयरफॉर 7 पाई अपॉन 4 इज आल्सो अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर में अपने को दोनों आंसर एंट्री करनी है। तो देयरफॉर 3 पाई अपॉन 4 एंड 7 पाई अपॉन 4 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, कहीं पर भी कोई भी डिफ़िकल्टी है तो यू कैन लीव योर डिफ़िकल्टीज, योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स है, जिसको भी नहीं समझ में आएगा मुझे बताओगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, आराम से क्लियर कर सकते हो। नाउ सी थर्ड वन, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर √3 कोसेक थीटा इक्वल टू -2, प्लस 2 को हमने क्या किया, राइट साइड में ट्रांसफर किया, तो ये क्या हो जाएगा, -2। देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल टू -2 अपॉन √3। तो √3 को हमने यहाँ क्या किया, इसको राइट साइड में लाके डिवाइड। अब कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, सिंस कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू -√3 अपॉन 2। अब फिर से वही बात आती है कि साइन हाउ मच डिग्री इक्वल टू √3 अपॉन 2। ओके, तो साइन हाउ मच डिग्री इक्वल टू √3 अपॉन 2, यस बता सकते हो, बोल सकते हो। तो सिंस साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 अपॉन 2। नेगेटिव साइन को एज इट इज रखना है, नेगेटिव से यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए कि -√3 अपॉन, अपने को पहले ही डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसको खोजना नहीं है कि कितना डिग्री है। माइनस एज इट इज साइन पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 3 इज √3 अपॉन 2, तो भी तो नेगेटिव हो गया ना, -√3 अपॉन 2। अब इसके बाद हमें देखना है कि साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो यू नो वेरी वेल साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अपने को इसे थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए सबसे पहले ये फार्मूला यूज करो, सिंस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर, पाई अपॉन 3। तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई अपॉन 3। here 3 into pi, 3 pi plus 1 pi, that is 4 pi upon 3. So therefore sin theta, from here sin theta equal to sin 4 pi upon 3 and 0 is less or equal 4 pi upon 3 is less than 2 pi, ये भी रेंज के अंदर है। तो therefore 4 pi upon 3 is a principal solution. Now we know that sin 2 pi minus theta is minus sin theta, means अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, 360 माइनस थीटा। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हियर थीटा इज पाई अपॉन 3, तो दोनों ही प्लेस पे पाई अपॉन 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई अपॉन 3। देखो यहाँ से माइनस साइन पाई अपॉन 3, थीटा क्या है, पाई अपॉन 3 इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या है, पाई अपॉन 3, यहाँ से थीटा पाई अपॉन 3, 3 2 या 6 पाई माइनस पाई। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन 5 पाई अपॉन 3, 6 pi minus pi, 5 pi upon 3 as it is, and 0 is less or equal 5 pi upon 3 is less than 2 pi, ये भी रेंज में आता है। तो therefore 5 pi upon 3 is also a principal solution. Therefore 4 pi upon 3 and 5 pi upon 3 are principal solutions of given trigonometric equation √3 cosec theta plus 2 equal to 0. ये अपने 2 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। तो अपने सॉल्यूशंस के लिए फ्यू क्वेश्चंस सॉल्व किए पॉजिटिव और फ्यू क्वेश्चंस सॉल्व किए नेगेटिव, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे उसमें जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये दिखाया जाएगा, तो उसमें इजीली समझ सकते हो। फिर उसके बाद अपने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं दूसरे एक्सरसाइजेज में, तो उसको फार्मूला बार्ट करते हुए सॉल्व करते हुए चलोगे और इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें टेंशन नहीं है।
तो ये आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। और अभी तक हमारे जो भी डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।